ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਪ੍ਰੇ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ हालेलुया 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 शक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा लख लख शुक्र दे तेरे कदम च बैठने का मौका था तेरा शुक्रिया खुदा तेरा धन्यवाद प्रभु सारे ग्रुप ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਭਜਨ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸੁਣੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਆਮੀਨ ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 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 ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲਦੀ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੂਈ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੂਈ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰੇ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਤਿਆਰੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਤਿਆਰੇ ਰੂਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਰਦੀ ਵੈਰੀ ਉੱਤੇ ਵਾਰੇ ਰੂਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਰਦੀ ਵੈਰੀ ਉੱਤੇ ਵਾਰੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਰਡ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਸਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ sorry sister Amandeep है नहीं उठाना okay sister Saba जी जी ready जी praise Lord हाँ जी praise Lord पाक रूह के जोर से हो रहा है पाक रूह के जोर से लाम का इल्हाम का कलाम का इल्हाम का पाक रूह के जोर से हो रहा है पाक रूह के जोर से हो रहा है पाक रूह के जोर से
बता तवज्जो कलाम पर और लाता ईमान यीशु नाम पर, जो करता तवज्जो कलाम पर और लाता ईमान यीशु नाम पर, आबाद हो, आजाद हो, आबाद हो, आजाद हो, पाक रुख से हो रहा है, पाक रुख से हो रहा है, पाक रुख से बुला रहा अब शैतान का, ना जुल्मत का रफ़्ता का, पूरा शैतान का, ना जुल्मत का तूफान का, दलेर हो, दिल शेर हो, दलेर हो, दिल शेर हो, पाकिरों के जोर से हो रहा है, पाकिरों के जोर से हो रहा है, पाकिरों के जोर से उस कलाम पर रूह पाक पे, उस कलाम पे रूह पाक पे नाम पाक हो, बेताब हो, पाक हो, बेताब हो, पाक रूह के जोर से हो रहा है, पाक रूह के जोर से हो रहा है, पाक रूह के जोर से राम का इल्हाम का कलाम का इल्हाम का, पाक रूह के जोर से हो रहा है, 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 पाक रूह के जोर से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Amen. Praise the Lord. Thank you, Aaron. Aaron, God bless you. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਠੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀੜੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਅਮਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਿਸਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਛੁਪਾਵੀਂ, ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਧਾਵੀਂ, ਦੇਵੀਂ ਉਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੂੰ ਵਾਂਗ ਉਮਰ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਢੇਰੀ, ਤੂੰ ਵਾਂਗ ਉਮਰ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਢੇਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਦਾ ਤੰਦੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ
मेरी दुआ हुण पहुँचे। मेरी उम्र दे दिन दे साया, मैं काबा गुर कुमलाया। सुख के होया मैं चूर, मेरी दुआ हुण पहुँचे। बिच तेरे हजूर, मेरी दुआ हुण पहुँचे। तेरे गुस्से ने खुदाया, मैनू चुक के फिर डिगाया। होया तैथों मैं दूर, मेरी दुआ हुण पहुँचे। बिच तेरे हजूर, मेरी दुआ हुण पहुँचे। तू मैथों ना छुपावी, तंगी बिच हाथ बधावी। देमी उतर जरूर, मेरी दुआ हुण पहुँचे। बिच तेरे हजूर, मेरी दुआ हुण पहुँचे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Sister Dee. Praise the Lord. और ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ Lord Jesus ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord Jesus ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus ਹਰ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਗੀਤ ਗਾਇਆ Lord Jesus ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਿਓ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆਏ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ Lord Jesus ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣੀ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜੀਏ Lord Jesus ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਈਏ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord Jesus ਅਸੀਂ 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕ ਦਮਨ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਾਂ ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ Oh yes Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾ ਲਿਆ Lord Jesus ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾਚ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ praise the Lord ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਹੀਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ praise the Lord ਹਾਂਜੀ praise the Lord और pastor सोनिया खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद अपने परों में छुपा के रखे बड़ी कुदरत से खुदावंद आपको इस्तेमाल करता रहे और खुदावंद आपके वसीला से बहुत सी रूहें बचाए बहुत से लोगों को आप उठा खड़ा करने की मजबूत करने का बायस बने और खुदावंद की 7 रूहें आपकी जिंदगी में काम करें और आपको खुदावंद पाक दामन कमारी की माने तैयार करे और प्रस्टेज के लिए भी हम खुदावंद का शुक्र करते हैं हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे हालेलुया थैंक यू जीसस खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ है बाप खुदावंद कि तू हमारे
गुनाहों को उठा ले जाता है खुदा। तूने वो सारी गंदगी, सारी नापाकी, सारी लानते खुदा, सारा जो कुछ हमारे खिलाफ लिखा गया, पढ़ा गया था, जो चिल्ले चढ़ाए थे, जो जादू टूना, जो भी इब्लीस के मंसूबे थे खुदा हमारे खिलाफ खुदा यीशु, तूने सलीब पर उनको खत्म कर दिया, हमारी जिंदगी से उनके सारे असर को खत्म कर दिया। तेरा शुक्र करते हैं खुदा। जब हम इस रोटी को लें, इस पानी को लें, जो कि खुदा यीशु तूने इस लहू को हमारी खातर बहाया, इस बदन को हमारी खातर तोड़ा, ताकि खुदा हम शिफा पाए, हम आजादी पाए, रिहाई पाए खुदा। तेरे जोर में, तेरी ताकत में बढ़ते जाएं खुदा, तेरी पाकीज़गी में हम बढ़ते जाएं। हमारे जिंदगियों में तुझ पर खुदा जो तेरा ईमान, तुझ पे जो हम ईमान रखते हैं, तवक्कल रखते हैं, वो गहरा होता जाए खुदा यीशु। वो पाक तरीन ईमान जो है हमारी जिंदगियों में आ जाए, वो तेरी पाकीज़गी आ जाए खुदा यीशु, वो मोहब्बत की आग हमारे दिलों में लग जाए खुदा, तेरी फरोतनी आ जाए खुदा, तेरी हलीमी हमारे अंदर आ जाए खुदा। हम जैसे खुदा हम पहले जैसे ना रहे खुदा यीशु, हम पाक तेरे लहू से धुलते हुए खुदा यीशु तेरी मानिंद बनते जाएं खुदा यीशु। हम रोज बरोज खुदा तुझ में जुड़ते जाएं खुदा, तुझसे पवित्र होते जाएं खुदा यीशु। हम न रहें, बल्कि खुदा हमारे अंदर तू जिंदा हो जा खुदा यीशु। हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है खुदा। तेरा कलाम फरमाता है, जो डाली जुदा हो जाती है, जो गिर जाती है, जो टूट जाती है खुदा तुझसे खुदा वो सूख जाती है, वो कोई फल नहीं लेके आती खुदा, वो आग में डाली जाती है खुदा। हम वैसा नहीं बनना चाहते, हम तुझ में व्यस्त रहना चाहते हैं, ताकि बहुत सा फल लेके आए खुदा हमारी जिंदगियों में खुदा यीशु तू नजर आए खुदा। जब लोग हमें देखें तो खुदा वो हमें ना देखे, जहां जहां हम जाएं, स्कूलों में, कॉलेजेस में, जॉब प्लेस पे खुदा हमारी फैमिलियां जब हमें देखें तो खुदा यीशु वो हमें ना देखें, वो तुझे देखें। हमारे उठने बैठने में, चलने फिरने में हमारे रवैये तब्दील हो जाए खुदा, हमारे बिहेवियर चेंज हो जाए खुदा यीशु। हम तेरी मानंद बन जाए खुदा, और खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, और शैतान को खुदा हमारी जिंदगियों से खुदा शर्मिंदगी उठाने पड़े खुदा, उसका कोई वार हमारे ऊपर चलने ना पाए यीशु के नाम से खुदा। हम खुदा यीशु खुदा शैतान को अपने पांव तले हर रोज, हर सांस में कुचलते रहें खुदा, उसके सारे मंसूबे, उसके सारे जो जाल हमारे चुगिर्द बिछाता है खुदा हमारी जिंदगियों में जो रोड़े अटकाता है खुदा, हमारी जिंदगियों में जो बीमारी को, परेशानी को, दुख को, तकलीफ को लेके आता है, यीशु के नाम से खुदा हम तेरे जोर से उसके पर गलबा पाते रहें, फतह पे फतह हासिल करते रहें खुदा यीशु के नाम से। मैं एक एक के चुगिर्द खुदा तेरे निगाहबान, तेरे पाक फरिश्ते, तेरे जंगजू, तेरे सुरमा फरिश्ते, तेरे हीलिंग वाले फरिश्ते खुदा तेरे तकवीत देने वाले फरिश्तों को मांग लेती हूँ यीशु के नाम से। हम में से कोई भी खुदा बीमार ना हो खुदा, कोई भी किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में ना रहे खुदा। जब भी ये तीर हमारे ऊपर चलाए दुश्मन की फौजें, तो खुदा हम उनका जवाब देने के लिए हमारे पास तेरा कलाम हो, तेरी जो रूह की तलवार है खुदा यीशु के नाम से, उस तलवार को हम चलाते रहें, और जो वो हमारे खिलाफ तीर चलाता है, हम यीशु तेरे नाम से वो तीर वापस उसी के सीने में लगाते रहें, और खुदा हम तेरे जोर से फतह पे फतह हासिल करते रहें खुदा यीशु। किसी भी तरह से शैतान को खुदा हम खुश ना करें खुदा, हम अपने खुदा को, अपने बाप को, अपने यीशु को खुश करते रहें अपनी जिंदगियों से खुदा वो हमारे बारे में भी कहे कि मैं खुश हूँ अपने बच्चों से खुदा बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे जोर के लिए, तेरी ताकत के लिए, तेरे दिए हुए इख्तियार के लिए खुदा यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तेरी तारीफ हो खुदा, तू ही इज्जत और सारी तमजीद के लायक खुदा है। हम तुझे सजदा करते हैं, तेरे ही कदमों को चूमते हैं, तेरे ही आगे अपने सरों को झुकाते हैं, क्योंकि तू ही हमारा जिंदा खुदा है जो दुआओं का जवाब देता है।
जो हमें मुश्किलों से, परेशानियों से निकालने की कुदरत रखता है, ताकत रखता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हम ईमान से इस पानी को पिएं और इस रोटी को लें जो कि अब खुदावंद यीशु मसीह के लहू में तब्दील होगी, उसके बदन में तब्दील हो गई है, ताकि हम और ज्यादा पाक हों और ज्यादा खुदावंद में बढ़ते जाएं, उसमें व्यवस्थ होते जाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद हमें रोज ये मौका बख्शता है कि हम उसके साथ रफाकत रखें, उसके साथ वक्त गुजारें। हम पर्सनल अपनी अपनी दुआओं में तो उसके साथ वक्त गुजारते हैं, या कुछ जो है वो इस तरह से खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं कि वो हर वक्त खुदाउन से बातें करते रहते हैं, या दुआ में या रोजे में ठहरते हैं। लेकिन ये हमारी जो है एक जमायती कह लें दुआ है या रफाकत है, इससे भी हमें जोर और ताकत मिलता है। इसलिए वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। तो खुदा उनका हम शुक्र करते हैं कि हम इकट्ठे मिल के खुदा उनकी हजूरी में आए हैं। और मेरा ईमान है कि हम सब खुदा से मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, उसकी इज्जत करने वाले लोग हैं, और हम शैतान को खुश नहीं करना चाहते। हालेलुया। तो इसलिए हम जब खुदावंद का कलाम किसी भी सूरत में हमें मिलता है, कई दफा गीत हम गा रहे होते हैं तो खुदावंद हमसे बोलना शुरू हो जाता है, कई दफा बाइबल पढ़ रहे होते हैं, है ना, या कई दफा कोई मैसेज सुन रहे होते हैं तो खुदावंद हमारे साथ बोलना शुरू हो जाता है। तो खुदावंद का हम शुक्र करते हैं, वो जिस भी रूप में आके हमारे साथ बात करे, वो जोरावर खुदावंद है। हालेलुया। हम मकाशवा की किताब, उसका 14 चैप्टर हमने पढ़ा था, और आज हम 15 चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। हमारे साथ रीडिंग में कौन है? सॉरी, तो सिस्टर सनिया वो नहीं आई, ओके ठीक मैं कर है जी। देती हूँ। ओके, माया भी नहीं आई मेरा ख्याल, है ना? ओके चले जी। वंजना आप कर सकते हैं हिंदी में, और वफा उर्दू में करती है ना? तो ये हाँ जी। चैप्टर वैसे तो हम देखेंगे कि कितनी इस पे बात होती है, लेकिन ये छोटा ही है तो हम सारा ही पढ़ लेते हैं, तो फिर उसके बाद बात करते हैं। जी अंजना और वफा, आप पढ़ना, पहले हम चैप्टर पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। 15 चैप्टर मुकाशवा की किताब, उसका 15 बाब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्स तो हाँ जी, क्योंकि 8 ही आयते हैं तो हम सारा ही पढ़ लेते हैं, लेकिन देखेंगे कि आज कितनी आयतों पे बात हो सकती है। जी पढ़ेंगे वफा, अंजना? हाँ जी चल, प्रेज द लॉर्ड। मैं आकाश उते एक होर निशान ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਚਰਜ ਡਿੱਠਾ, ਅਰਥਾਤ 7 ਦੂਤ 7 ਬਵਾ ਲਏ ਹੋਏ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਕਰਲੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਣੋ ਕੱਚ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਉ ਦੇ ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਬਾਬ ਫੜੀ ਕੱਚ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦਾ ਗੀਤ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਹਨ ਤੇਰੇ ਕੰਮ। ਹੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਯਥਾ ਰਥ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਨ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ।
हे प्रभु कौन तेथों ना डरेगा ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਦੂਤ ਦੀ ਹੈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਦੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 7 ਬਵਾ ਸਨ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚਮਕਦੀ ਕਤਾਨ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਛਾਤੀ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਚੌਹਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ 7 ਕਟੋਰੇ ਫੜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਹੈਕਲ ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ 7 ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਬਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। Praise the Lord. जी बाबा, वाफा पढ़ेंगे आप? मैं पढ़ूं? हम्म। जी जी। एक सेकंड। फिर मैंने आसमान पर एक और बड़ा और अजीब निशान यानी 7 फरिश्ते 7 पिछली आफतों को लिए हुए देखे, क्योंकि इन आफतों पर खुदा का कहर खत्म हो गया है। फिर मैंने शीशा का सा एक समंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी, और जो उस हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे उनको उस शीशा के समंदर के पास खुदा की बरबतें लिए हुए खड़े हुए देखा। और वो खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे, ए खुदावंद खुदा कादर मुतलक, तेरे काम ए अजली बादशाह, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त है। ए खुदावंद कौन तुझसे ना डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कदूस है और सब कौमें आकर तेरे सामने सजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए हैं। इन बातों के बाद मैंने देखा कि शहादत के खैमा का मकदस आसमान में खोला गया, और वो 7 फरिश्ते जिनके पास 7 आफतें थीं, आबदार और चमकदार जवाहर से आरास्ता और सीनों पर सुनहरी सीनाबंद बांधे हुए मकदस से निकले। और उन चारों जानदारों में से एक ने 7 सोने के प्याले अब्दुल अबाद जिंदा रहने वाले खुदा के कहर से भरे हुए उन 7 फरिश्तों को दिए, और खुदा के जलाल और उसकी कुदरत के सबब से मकदस धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 फरिश्तों की 7 आफतें खत्म ना हो चुकी कोई उस मकदस में दाखिल ना हो सका। आमीन। आमीन जी। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि जो पिछला चैप्टर था 14 चैप्टर, उसमें हमने देखा था कि जो फसल की कटाई के बारे में हमने देखा कि वो शहीद जो हैं उनके बारे में बात हुई, और जो अंगूर रौंदे जाने थे वो जो इसराइली जो खुदा उनको कबूल नहीं करेंगे, है ना, उनके बारे में बात हो रही थी कि वो रौंदे जाएंगे, जो जिनके ऊपर मोहर जो थी वो नहीं लगी थी। और हमने देखा कि पाकिस्तान से जो इसराइली हैं उनको एक जैसे कल तमसीलों में या खुदावन ने बात की है, अंगूरों से एक तशबीह जो है वो दी है। तो इसलिए इसराइली कौम ये जो 14 और 15 चैप्टर है, इसमें पूरे जो 7 साल हैं मुसीबतों के, उसके बारे में बात हुई है। यानी पहले हिस्से या दूसरे हिस्से के बारे में, तो दोनों ही हिस्से जो हैं, यानी पहले 3.5 साल और दूसरे 3.5 साल जो हैं, यानी जो यहूदियों पे जुल्म सितम होगा या कहर होगा खुदाम का, और जो मसीहियों पे होगा, दोनों के ही बारे में जो है बात जो है, या खुदावन ने यूहन्ना अरब को जो रोया थी वो दिखाई थी, है ना। तो इसलिए इस चैप्टर में भी कुछ इसी तरह है कि दोनों के बारे में बात हो रही है, ये यानी जो मसीह के लोग हैं और जो पुराने अहदनामे के या
कह लें कि जो इसराइली हैं उनके बारे में बात जो है वो हो रही है ना। ये 15 चैप्टर जो है, तो पहले जो 3.5 साल थे मुसीबतों का जो दौर था, है ना, उस पे हमने देखा कि मसीहियों पे जो जुल्म सितम था वो हुआ, यानी उसको फसल की कटाई से एक तशबीह जो है वो दी गई कि फसल पकी हुई है। यानी इसका मतलब कि जो पहले फल थे, जो दुल्हन थी, वो जब आसमान पे उठा लेगी तो बाकी की जो फसल थी वो भी उस वक्त उस दौर में जो यानी थी वो पक गई थी, और फिर उसकी कटाई हुई। और हमने ये सीखा कि उसकी कटाई किस तरह हुई, यानी सबको ही एक किस्म की जो जान है वो देनी पड़ेगी उस दौर में, अगर वो मसीह से मोहब्बत रखते होंगे। तो उस वक्त यही एक कह लें हुक्म होगा कि वो जो छाप है वो ना ली जाए, और वो फरिश्ते जो है वो मनादी करेंगे, है ना, प्रचार करेंगे कि कोई भी वो जो छाप है जो एंटी क्राइस्ट का, मुखालिफ मसीह का निशान होगा, या उसको अपना जैसे कह लें कबूल कर लेना और खुदा यीशु मसीह का इनकार कर देना, वो एक निशान होगा। तो वो जो भी लेगा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि वो खुदावंद के फरिश्तों ने उसमें मनादी की थी कि वो खुदा के कहर के प्याले में से पिएगा, यानी वो आग की झील में या गंधक का जो अजाब होगा उसमें डाला जाएगा, है ना। तो इसलिए उस वक्त यही एक क्या लें हुक्म होगा जिसको उन्होंने पूरा करना है, कि छाप जो है वो नहीं लेनी, और जो भी छाप नहीं लेगा, मुखालिफ मसीह जो है वो उनको मरवा देगा, है ना। तो इसलिए ये पिछले चैप्टर में थोड़ी सी बात उस पे हुई थी। तो इस चैप्टर में भी हम देखते हैं कि 7 जो हैं फरिश्ते, वो 7 आफते जो हैं वो अ, उनकी बात हो रही है ना। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे, या ये जो दौर है, दूसरा हिस्सा जो है शुरू जो होगा खुदा के कहर का, इसमें जो झूठा नबी है यानी और मुखालिफ मसीह जो है उसकी सजा के बारे में भी इसमें बताया गया है कि उनको भी जो एक कह लें कि आग की झील में जो है वो डाला जाएगा, है ना। और फिर हम ये 7 साला जो मुसीबतों का दौर खत्म होगा, तो हम देखेंगे कि इन दोनों को भी आग की जेल में डाला गया है, मुखालिफ मसीह और जो झूठा नबी होगा। और जो ड्रैगन होगा, जो शैतान है, उसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि उसको भी 1000 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा, है ना। तो इस चैप्टर में अभी हम देख रहे हैं कि ये मुसीबतों का जो दौर है, दूसरे हिस्से का जो दौर है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो ये 7 आफतें आएंगी, 7 जो प्याले हैं, जो खुदावंद के 7 फरिश्ते जो हैं वो आफतें जो उंडेलेंगे जमीन के ऊपर, ये इस वक्त यानी खुदावंद का कहर जो है, जो उस वक्त जमीन पे रहने वाली कौमें हैं या जो लोग होंगे उन पे खत्म हो जाएगा, ये खुदावंद का कहर जो है ना। और ये जो एक कह लें कि मुसीबतों का या दौर है, जो पहला हिस्सा है पहले 3.5 साल का हिस्सा जो है, उसमें हैकल जो है वो बन जाएगी, हैकल जो है तामीर हो जाएगी। और वहां पे जैसे कह लें कुर्बानियां जो हैं वो यहूदी लोग जो है वो शुरू कर लेंगे। लेकिन जैसे ही मुसीबतों का जैसे कह लें दूसरा हिस्सा जो है वो शुरू होगा 3.5 साल का, तो झूठा नबी जो है और मुखालिफ मसीह जो है वो उन कुर्बानियों को खत्म करवा देगा, और जो उनसे अहद बांधा होगा पीस का, अमन का, जो यहूदियों से
उस अहद को जो मुखालिफ मसीह है, एंटी क्राइस्ट जो है, वो तोड़ देगा यहूदियों के साथ, है ना? तो इसलिए जो ये दूसरा हिस्सा होगा 3.5 साल का, जिसमें जो एंटी क्राइस्ट है, जो मुखालिफ मसीह है, पहले 3.5 साल के दौर में उसकी यहूदियों के साथ एक जैसे कह लें सुलह होगी, या उनको कोई वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन दूसरे 3.5 साल के हिस्से में जो है मुखालिफ मसीह, वो उन पे जुल्म सितम जो है वो करेगा, और खुदावंद का भी कहर होगा, और उनके साथ जो इसका अहद इसने बांधा होगा, पीस का, अमन का, वो तोड़ देगा, ये जो मुखालिफ मसीह होगा, है ना? तो इसलिए उस वक्त जो है मुखालिफ मसीह जो है वो खुल के जैसे कह लें यहूदियों के सामने आएगा, और ये जब कुर्बानियां जो हैं वो बंद करवा देगा उधर, जो हैकल बनवाई होगी उस वक्त, उस दौर में, और ये जाके जैसे कह लें खुद बैठ जाएगा। तब जो है वो जो कह लें कि यहूदी होंगे, उनकी आंखें जो हैं, जो असल यहूदी हैं, या जो बचाए जाएंगे, जैसे हमने सीखा कि जिन पे मोहर हुई होगी, है ना, तो उनकी आंखें जो हैं वो खुलेंगी। और उस दौर में हमने देखा कि दूसरे हिस्सा जो होगा 3.5 साल का, उसमें वो जो 2 गवाह हैं वो आएंगे। तो उस वक्त जो ये अभी हम दानियल की किताब में जो हवाला है वो पढ़ते हैं ना, कि उस वक्त उन पे वो जो जैसे वो 10 दिन जैसे कह लें यहूदी लोग तौबा करते हैं अभी भी, है ना, और वो दौर जो है वो शुरू हुआ था। तो हम एक हवाला पढ़ते हैं कि दानियल नबी ने इसके बारे में एक वाज़ह जो है वो बताया हुआ है। तो आप अंजना निकालना, दानियल की किताब उसका 9 बाब, उसकी 27 आयत है, लेकिन हम पीछे से भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। दानियल की किताब हाँ जी उसका 9 बाब, हाँ जी, उसकी आप 27 हाँ जी 27 है, 26 से ही आप पढ़ लें। हाँ ਅਤੇ ਬਹਾਟਾਂ ਸਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਸੀਹ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਗੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਛੇਕੜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੀਕ ਲੜਾਈ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਤੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸਾਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਤੇ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਉਜੜੇ ਹੋਇਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, ये जो लड़ाई है, यानी ये आखिरी उस जो हर मजदून की जो जंग है उसके बारे में जो दानियल है, खुदा ने उसको बताया है ना, तो उसके बारे में बात हो रही है। और जो बादशाह है वो जब खुदा यीशु मसीह आएगा, है ना। लेकिन ये जो मकरू जो उजाड़ने वाली है जिसके बारे में जिक्र है, यानी मुखालिफ मसीह जो है अपनी जैसे कह लें मूरत जो है, वो मूरत ये भी हो सकती है, या वो अपनी जो है मूरत जो है वो बनवाएगा, है ना, एंटी क्राइस्ट और जो ड्रैगन है ना। तो इनमें से कोई भी वो जो मूरत है वो हो सकती है, ये देखिए, है ना। तो वो उजाड़ने वाली जो जिसका जिक्र है कि मकरूहात जो हैं वो रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी, है ना। तो उस दौर में वो अपनी जो है वो मूरत जो है वो बनवाएगा, और जो उसको सिजदा नहीं करेगा, है ना, उसको वो मरवा देगा। जैसा कि हमने पीछे भी सीखा था कि दानियल के दौर में भी जो वो बादशाह था, नबूकदनेस्सर बादशाह, है ना, उसने भी अपनी मूर्ति जो थी बनवाई थी, और वो जो सजदा उसको नहीं करता था, जैसे कि वो जो दानियल के दोस्त थे उनको
आग की भट्टी में डाला गया था, है ना। तो इसी तरह इस दौर में भी होगा कि जो भी इस मूरत को सजदा नहीं करेगा उसको मार दिया जाएगा। तो इसलिए उस दौर में वो जो 3.5 साल का ये जो कह लें अरसा होगा, जो उसमें खुदावंद का भी कहर होगा, और ये जो मुखालिफ मसीह है, एंटी क्राइस्ट जो है, और जो ड्रैगन है यानी कि शैतान, वो ही पुराना अस्तहा, उसका भी उसके यहूदियों के ऊपर या बाकी की जो कौमें हैं उनके ऊपर जुल्म सितम जो है वो हो रहा होगा, है ना। तो इसलिए खुदावंद का कहर जो है वो ये 7 प्यालों की सूरत में, जैसे हमने पीछे जो है जब सीखा कि नरसिंगे फूंके गए थे, फूंके जाते थे, तो खुदावंद का जो कहर था वो जमीन के रहने वालों पे नाज़िल होता था। तो इसी तरह ये बिल्कुल उसी तरह है कि इस ये अब जो है मसीहियों के जैसे कह लें नुक्ता नज़र से जो यूहन्ना अरफ है वो रोया जो है वो देख रहा है। तो हमें जो है खुदावंद जो है वो प्यालों की सूरत में हमारे साथ जो है मसीहियों के साथ बात करता है ना, कि कहर का प्याला। जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि अंजना आप निकालना, ये जो 14 चैप्टर है उसमें गजब का प्याला, 14 बाब उसकी 10 आयत में जो हम पढ़ते हैं दानियल कि प्रकाशित वाक्य काशफा की किताब, कि हमारे साथ जब खुदा बात करता है जो मसीहियों के साथ, तो वो गजब का प्याला, है ना, या इस तरह से बात करता है। हाँ जी, वर्स ਕਿਹੜੀ ਬੱਚੇ 10 ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਖਾਲਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਪਾਵੇਗਾ। आमीन। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है, गजब का प्याला। तो जब हम यहूदियों के नुक्ते नजर से वो जो कह लें आफ्तों के बारे में थोड़ा देख रहे थे, तो वहां पे नरसिंगे फूंके जा रहे थे, क्योंकि वो इस जुबान को कह लें या इस तरह से वो समझते थे। वो नरसिंगा फूंका जाता था, यानी जब खुशी होती थी या जंग होती थी, है ना, या किसी ने हमला कर दिया है या कोई भी ऐसा, तो वो प्यालों की बात, ओ सॉरी, नरसिंगों से जो है वो समझते थे, या नरसिंगा फूंका जाता था। लेकिन जब हमारे साथ बात होती है तो खुदावंद जो है वो प्यालों की सूरत में बात करता है। तो इसलिए इस चैप्टर में जो है हम प्यालों के बारे में देखेंगे कि गजब का प्याला जो है वो जमीन के जो रहने वाले हैं उनके ऊपर उंडेला जाएगा, है ना। तो इसलिए इसमें हम जब भी जैसे कह लें जो भी एक मुसीबत है या सजाएं जो हैं वो उंडेली जाएंगी जमीन के रहने वालों के ऊपर, तो प्यालों की बात होगी, है ना। तो प्याले जो हैं वो उंडेले जाएंगे, जो भी तकलीफें, जो भी अजियत आएगी या जो सजाएं खुदावंद उनके ऊपर भेजेगा, तो वो प्यालों की सूरत में बात होगी, है ना। तो इसलिए खुदावंद का कहर जो है वो प्याले की सूरत में जमीन के रहने वालों पे उंडेला जाएगा, है ना। तो ये दोनों जो कैलेंडर दौर हैं, यानी 3.5 साल का अरसा पहला और 3.5 साल का अरसा जो बाद में शुरू होगा, उसके दोनों के बारे में प्यालों की सूरत में हमारे साथ मसीहियों के साथ जो है कहले के बाद जो है बातचीत जो है, या खुदावंद हमें इस तरह सब समझाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शीशे का समंदर जो है उसको हम देख रहे हैं, इस पे हमने बात की हुई है, लेकिन हम फिर थोड़ी देखेंगे कि यहाँ पे 2 किस्म के लोग जो हैं कि शीशे के समंदर के जिसमें आग मिली हुई है, और जो उस हैवान और उस बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे, उनको उस शीशे के समंदर के पास देखा गया, है ना। तो ये हमने सीखा कि ये पुराने हैं जो बरबत बजा रहे हैं, जो मूसा का गीत गा रहे हैं, ये वो हैं जो
जो मूसा की शरीयत थी, है ना, जो मूसा का गीत गा रहे थे, तो शरीयत के बारे में हमने पीछे थोड़ा सीखा था कि वो गीत गा रहे हैं, है ना। तो वो गीत गया है, जैसे ही हम कह लें शरीयत या खुदावन के हुक्मों पे अमल करते जाते हैं, वो हमारे लिए एक गीत की सूरत में बनता जाता है वो। और जैसे जैसे जो उस गीत को या उस हुक्मों पर, उस शरीयत पे अमल करता जाता है, वो उसके लिए एक गीत जो है बन जाता, वो नया गीत बन जाता। तो हमने इन 1,44,000 जो थे उनके बारे में सीखा कि वो ही थे जो सिर्फ वो नया गीत जो है वो गा सके थे, उनके अलावा कोई नहीं सीख सका, क्योंकि वो खुदा के हुक्मों पे या खुदा की शरीयत पे, यानी खुदा यीशु मसीह जो जो करते थे, खुदा लिखा है कि खुदा यीशु मसीह के पीछे पीछे, बर्रे के पीछे पीछे वो चलते थे। तो यानी वो इस तरह से पाक बन सके या खुदावंद और हमने ये भी सीखा कि हमें पाक कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, यानी खुदा यीशु मसीह की जैसे ही हम जो शरीयत हमें मिली है या हुक्म खुदा उनकी तरफ से मिले हैं, जो खुदा ने हमें जैसे कह लें कानून दिए हैं या आइन सिखाए हैं, जो शागिर्दों के जरिए हम तक पहुंचे, जैसे जैसे हम उसको पूरा करते जाते हैं, खुदा का कलाम हमें धोता जाता है, पाक और साफ करता जाता है ना। एक तो खुदा यीशु मसीह का लहू पाक साफ कर रहा है, दूसरा खुदा का कलाम हमें पाक और साफ कर रहा है, धो रहा है। तो जैसे जैसे ये खुदा के कलाम पे हम अमल करते जाते हैं, वो हमारे लिए एक नया गीत जो है वो बन जाता है। इसीलिए यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मूसा का गीत गा रहे थे और ये बर्रे का गीत गा रहे थे। जो हमने सीखा कि ये वो जो जो शहीद हैं, ये वो लोग हैं जो किस पे गालिब आए थे, जिन्होंने छाप नहीं ली थी, जिन्होंने उस मान की, उस बुत की प्रस्तिश नहीं की थी, और उन्होंने अपने जो सर थे जैसे कह लें कटवाए, है ना, या अपनी जानें जो थी वो दी। ये 20 चैप्टर में हम देखते हैं कि तख्त के सामने कौन खड़े हैं जिन्होंने खुदा यीशु मसीह की खातिर जो है वो जाने कुर्बान की। उस दौर में कह लें कि जाने जो हैं वो कुर्बान की मुसीबतों के दौर में, तो वो बर्रे का गीत गा रहे होंगे। और जो मूसा का गीत गा रहे हैं ना, वो मूसा वो पुराने अहदनामे के जो मुकद्दसीन हैं या जो यहूदी हैं, ये उनकी जो बात है वो हो रही है ना। तो जो बर्रे का गीत गा रहे हैं, है ना, कि वो फजल के दौर के जैसे कह लें कि मसीही हैं। और ये वो नहीं है, हम इस बात को बार बार करते हैं कि ये दुल्हन नहीं है, ये जो खुदा यीशु मसीह की खातिर जान देंगे, ये वो लोग हैं। और जो शहीद जैसे कि कह लें कि खुदा यीशु मसीह के जैसे शागिर्द भी जो थे, सवाए यूहन्ना आरफ के, बाकी सब शहीद हुए थे ये वो वाले शहीद नहीं है, क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह की दुल्हन है। जो शहीद वो हुए, लेकिन वो जैसे कह लें कि वो उस पाक दामन कमवारी की माने तैयार थे, है ना। तो शहीद जो हैं वो उस पाक दामनी में चले नहीं थे। ये जो पहले 3.5 साल के दौर में हमने देखा कि जो मसीह बाकी रह जाएंगे, दुल्हन तो उठा ली जाएगी, लेकिन जो बाकी रह जाएंगे उनके कपड़ों पे दाग होंगे। ये उस तरह से पाक दामनी में नहीं चले थे खुदा उनके, इसलिए इनके कपड़ों पे दाग थे। तो ये इस दौर में नए 7 चैप्टर में लिखा है क्या, है ना, कि उन्होंने उस दौर में, मुसीबतों के दौर में क्या किया था, अपने कपड़ों को धोया था और पाक साफ हुए थे उस दौर में, है ना। लेकिन जो दुल्हन है वो हम उस आगे 19 चैप्टर में देखते हैं कि वो तैयार है, वो उसने वो कपड़े जो हैं वो सारे पहन लिए हुए, है ना। लेकिन ये जो इस दौर में रह जाएंगे पहले 3.5 साल के
मुसीबतों के दौर में इनके कपड़ों के ऊपर दाग थे, तो वो बरे के खून से उस वक्त अपने कपड़ों को धोएंगे। ये 7 चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है ना। तो इसलिए ये वो वाले लोग हैं ये तैयार नहीं थे, लेकिन जो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द थे वो शहीद भी थे, लेकिन वो दुल्हन भी थे। जिस तरह खुदा यीशु मसीह भी शहीद हुए, यानी उन्होंने भी जान दी, तो इस तरह वो कामिल थे, वो परफेक्ट थे। जिस तरह खुदा यीशु मसीह कामिल थे, परफेक्ट थे, है ना, यानी जो भी वो एक खुसूसियात थी जो वो उनमें पाई जाती थी। लेकिन शहीद जो हैं, जैसे शायद एक दिन मैंने पहले भी बात की थी कि इनमें बच्चे भी शामिल होंगे। अब जैसे सीरिया या जो मुस्लिम इलाके हैं जहाँ पे मसीहियों को शहीद किया जा रहा है ना, वो मारा जा रहा है, तो उनमें बच्चे भी हैं। जैसे चले छोटे बच्चे हैं या पैदा ही हुए हैं या 2-3 साल के या जो भी एज है, तो वो शहीद हैं। तो वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो शहीद हैं। उन्होंने खुदा यीशु मसीह की खातिर उनको मारा गया, तो वो भी उस जगह पे, यानी तख्त के आगे वो भी खड़े होंगे, है ना। या फिर एक दिन मैं बात कर रही थी कि जो खुदा यीशु मसीह की खातिर जो लोग, जैसे अब फर्ज करें, मैं अपना कहूँ कि अभी अगर मैं नहीं भी तैयार एक दुल्हन की मानिंद, लेकिन अगर अब जैसे तकरीबन 8 साल हो गए हैं कि कभी कोई दवाई नहीं ली, कभी डॉक्टर के पास नहीं, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरा ईमान खुदा यीशु मसीह पे है कि वो मुझे बचाए। ठीक है, वो नहीं भी बचाएगा, मेरी जान चली जाएगी, तो ऐसे मैं भी उन शहीदों में शामिल होंगी। अगर मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, अभी अगर कामिल नहीं भी बनी, तो उन शहीदों में मैं शरीक होंगी, क्योंकि मैंने किस खुदा यीशु मसीह पे ईमान रखा और मेरी जान जो है वो चली गई कि मुझे शफा मिले। ठीक है, नहीं भी मिलेगी तो कोई गल नहीं, मैं दवाई जड़ियों नहीं लवांगी, है ना। तो वो भी लोग उन शहीदों में शामिल होंगे। तो इसलिए ये कुछ शहीद जो हैं वो अभी कामिल उस तरह से बने नहीं, जिस तरह हमने सीखा कि ये जो 4 जानदार थे तख्त के आगे, और वो ये 4 जो हमने खुसूसियात सीखी कि पाकीज़गी, ईमान, हलीमी और मोहब्बत, है ना। तो उनमें किसी एक एरिया में वो परफेक्ट थे, वो कामिल थे। यानी जैसे दाऊद मेरे ख्याल मोहब्बत में जो था कामिल था, और इब्राहिम जो था वो ईमान का उसका जो कह लें लेवल जो था उसमें वो कामिल था, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह जो पुराने अहदनामे के मुक़द्दसीन हैं थे, तो वो किसी ना किसी एक इस एरिया में या ये जो खुसूसियात हमने सीखा था पीछे कि उसमें वो कामिल थे, लेकिन चारों जो खुसूसियात हैं उसमें वो कामिल नहीं थे। लेकिन जो दुल्हन है उसको ये चारों जो खुसूसियात है, यानी ईमान, मोहब्बत, हलीमी और पाकीज़गी, इन चारों में परफेक्ट होना है, कामिल होना है ना। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो शहीद होंगे, इनमें किसी न किसी एरिया में हो सकता है ये खुदा उनकी मोहब्बत में बड़े कह लें परफेक्ट हों, या पाकीज़गी में, या ईमान में, या हलीमी में, लेकिन चारों में ये हो सकता है परफेक्ट ना हो। तो इसलिए ये जब दुल्हन को उठाने के लिए खुदा यीशु मसीह आए तो ये तैयार नहीं थे, तो फिर इनको जाने देनी पड़ी। यानी इस दौर में, मुसीबतों के दौर में, पहले 3.5 साल का जो अरसा होगा उसमें ये अपनी जाने देंगे। तो इसलिए ये फिर तख्त के आगे जो है खड़ा होने का जो इनको खुदावन जो है एक या तख्त के सामने खड़ा होने की रसाई जो है वो खुदावंद को देगा। लेकिन ये चारों जो खुसूसियात हैं वो इनमें नहीं होंगी, इसलिए ये तख्त के आगे हैं। इसलिए जो दुल्हन तैयार हो रही है, हमने ये पीछे सीखा था कि उनमें ये चारों खुसूसियात होनी चाहिए। तो और दूसरा ये कि जैसे शायद मैंने ये बताया कि वो मेरा ख़्याल आगे चल के करूँगी, आज मेरे ज़हन में नहीं रहा, इस तरफ बात शुरू हो गई है। तो कि जो
जिनको पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ, है ना, जो खुदा यीशु मसीह में आए हैं, और या जिस तरह जो बच्चे हैं वो शहीद होते हैं, अभी उन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, पाक रूह का उनका बपतिस्मा नहीं हुआ, अभी वो पाकीज़गी में नहीं चले, है ना, लेकिन वो शहीद हो गए तो वो तख्त के आगे होंगे, है ना। तो ये एक मैं कहूँगी कि इसलिए खुदावंद के लिए जान देने में कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये तो हमारे लिए, जिनको अभी कह लें कि अभी श्योर नहीं है, अभी अपने जैसे कह लें कि अभी मैं उस तरह से कामिल नहीं, हमें खुद जैसे कह लें अंदर से पता होता है हमारे दिल को कि मैं तैयार हूँ उस तरह से या नहीं, या है ना। तो या जिनको अभी पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ, पानी का बपतिस्मा आपने लिया, लेकिन अगर हमारी जान जो है वो खुदा यीशु मसीह की खातिर, तो हम जो हैं वो तख्त के सामने तक जा सकते हैं। नहीं तो वो एक वो सॉरी मैं चले कल मैं दिखाऊंगी कि जैसे हैकल जो थी उसका सहन जो था उसमें तो दाखिल हो जाते हैं जब हम मसीह के ऊपर ईमान लेके आते हैं, लेकिन वो जो अंदर का पाक मकाम और पाक तरीन मकाम है वहां तक हम नहीं जा सकते। ये हमने पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन से सीखा कि हर कोई जो था वो पाक मकाम जो था उसके अंदर नहीं जा सकता, उसके अंदर कहीं नहीं जाया करता था। और जो पाक तरीन मकाम होता था जहाँ अहद का संदूक पड़ा था, वहां काहिन जो था, सरदार काहिन, वो पूरा साल तैयारी करता था और फिर उसके अंदर जाता था। तो इसलिए उस जो कह लें खुदावंद का एक कानून था या एक निज़ाम खुदावंद ने बनाया था पाकीज़गी के लिए, वो खुदावंद का तब्दील नहीं हुआ। हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू से पाक साफ हो जाते हैं, लेकिन मुसलसल हमें उसमें चलना है। हमारे पुराने जो गुनाह हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह में हम आ जाते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन आगे हम क्या उस तरह से पाकीज़गी से, उस तरह से वफादारी के साथ खुदावंद के साथ चल रहे हैं, वो जो है हमें पाकीज़गी या वो खुदावंद के साथ जो रिश्ता है हमारा, वो हमें पाक मकाम तक या पाक तरीन मकाम तक लेके जाएगा। इसलिए जो मसीह में आ जाते हैं, वो हमारे जो पिछले गुनाह हैं, जो मारूसी गुनाह हैं, या उससे हम पाक साफ हो जाते हैं, है ना। लेकिन आगे हमें वफादारी के साथ, यानी जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने उस औरत को कहा कि उसके गुनाह माफ किए, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जा फिर गुनाह ना करें। बिल्कुल इसी तरह जब हम मसीह में आ जाते हैं तो पहले हमारे गुनाह माफ हो गए, लेकिन आगे को खुदा यीशु मसीह ने कहा कि गुनाह ना करें। तो फिर वो जो खुदा यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता है, पाकीज़गी है, खुदा उनके ऊपर ईमान है, मोहब्बत है और हलीमी है हमारे अंदर, जो वो हमें उस पाक तरीन मकाम तक लेके जाएगी, है ना। तो लेकिन ये जो लोग तैयार नहीं हैं, तो इस मौके को कभी ना हम गवाएं कि अगर जान जो है जो असल में क्या लिखा है कलाम में कि जो अपनी जान को बचाता है वो असल में खो देता है ना। तो हमें अपनी रूह को बचाने के लिए या उस तख्त तक या उस तख्त के आगे तक हमारी रसाई हो जाए, हमें कभी भी खुदा यीशु मसीह के लिए जान देने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो जान देगा वो असल में जो जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी, अब्दी जिंदगी वो पाएगा। तो इसलिए ये वो लोग हैं जिन्होंने उस छाप नहीं ली, जिन्होंने उस हैवान की बुत की प्रस्ती जो है वो नहीं की, है ना। यानी हैवान जो है मुखालफे मसीह, और बुत जो है यानी वो अपना बुत बनवाएगा, है ना। और उसकी छाप हमने सीखा कि ये एक सिस्टम होगा, जैसे ये जैसे कह लें कि वो ड्रैगन जो है उसकी मूरत यानी बुत, है ना। और मुखालफे मसीह जो है यानी वो हैवान जो है वो भी अपनी मूरत जो है वो बनवाएगा। तो इस तरह के से कह लें कि 3 किस्म के या 2 किस्म की मूर्तियां जो हैं वो या बुत जो हैं
वो हो सकता है वो इस तरह बनवाए, यानी बुत की भी होगी और हैवान की भी प्रस्तिश होगी, दोनों की। जो क्या कहते हैं शैतान जो है और जो मुखालिफ मसीह है ना। और जो छाप है वो एक सिस्टम होगा कि वो इस तरह का सिस्टम जो है कि हमें या उस वक्त जो लोग होंगे उनको वो छाप लेनी ही पड़ेगी। और ये हमने सीखा था कि वो जो क्या कहते हैं वो 10 जो मुल्क हैं या वो 7 वो सेंट जो थे है ना, वो एक पूरा सिस्टम पूरी उसका बनेगा, उसकी छाप जो है वो जो लोग लेंगे। तो अ, उन जो 14 चैप्टर में हमने पढ़ा कि वो उस खुदा उनके गजब के प्याले में से पिएंगे, है ना। लेकिन जो इस पे फतह हासिल करेंगे, जो गालिब आएंगे, वो तख्त के सामने तक उनकी रसाई जो है वो हो जाएगी, है ना। तो वो जो बर्रे का गीत गा रहे होंगे, जो वो उस तख्त के आगे तक जो है खुदावंद उनको पहुंचा देगा, है ना। तो ये हम एक और हवाला पढ़ते हैं मत्ती की इंजील उसका 24 बाब उसकी 22 आयत कि ये दौर जो है जो पहले 3.5 साल का, ये उन मुकद्दसों की खातिर वो दिन जो हैं वो घटाए जाएंगे। या जी पढ़ें अंजना 24 हाँ जी 21 22 22 चैप्टर नहीं हाँ जी 24 बाब 24 चैप्टर उसकी 22 आयत। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਘਟਾਏ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਾ ਬਚਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਦ ਜੇ ਕੋਈ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਵੇਖੋ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ जी, तो ये वो उस दौर के जो मुकद्दसीन होंगे, यानी वो अक्लमंद कवारियां जो हैं उनके लिए वो दिन जो हैं वो घटाए जाएंगे। खुदावंद उस दौर में जो एक जैसे हमने सीखा था कि पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन के पास भी एक फजल था, लेकिन वो एक जैसे कहने के जैसे अब फजल का दौर जो चल रहा है ना, इस तरह का फजल नहीं होगा। वो फजल की रूह जो है वो एक जैसे कह लें पीछे हमने पढ़ा था मुझे याद नहीं है ना, कि वो थोड़ा सा उनको जो एक फजल है वो मिलेगा। और खुदावन जो है उस दौर में से मुसीबतों में से गुजरने के लिए उनको एक जैसे कह लें कि जोर और ताकत जो है वो देगा, वो तसल्ली इत्मीनान जो है, क्योंकि वो उस वक्त कह लें दुआ में और शुक्रगुजारी में वक्त गुजारेंगे। और वो ही उनको वो एक जैसे कह लें कि एक ताकत जो है, एक जोर जो है, वो जो लोग हैं उस दौर में से गुजरेंगे उनको खुदावन जो है वो देगा। और वो मुसीबतों के ऊपर या जो भी अजियतें होंगी उन पे वो गलबा जो है पा सकेंगे, लेकिन सारे नहीं। इसीलिए वो बेवकूफ कबारियां जो हैं वो उस दौर में भी उस तरह से कह लें कि दुआ में या उसमें वक्त नहीं गुजारेंगे। इसलिए वो उनमें वो एक स्टैंड लेने का, खड़ा होने का, मुसीबतों में से गुजरने के लिए उनके पास एक जो ताकत है, जोर है, वो नहीं होगा। इसलिए वो बेवकूफ कुमारियां जो हैं वो छाप जो है वो ले लेंगी, है ना। लेकिन ये जो अक्लमंद कवारियां होंगी वो छाप नहीं लेंगी। तो खुदावंद उनकी खातिर जो है वो दिन जो है जैसे कह लें घटाएगा, ताकि वो उस दौर में से गुजर सके, है ना। और वो जो उस पे गलबा जो है वो पाएंगे। वो जो यानी वो छाप जो है वो नहीं लेंगे, उस बुत की प्रस्ती जो है वो लोग जो हैं हैवान की वो नहीं करेंगे। वो शहीद होंगे, खुदा यीशु मसीह की खातिर जाने देंगे मुसीबतों के दौर में, लेकिन वो छाप जो है वो नहीं लेंगे, है ना। एक और हवाला हम पढ़ते हैं ज़करिया की किताब उसका 12 बाब उसकी 9 आयत। ज़करिया ओ महज सनिया आ गई है, सनिया आप भी पढ़ना। जी भाभी जी, प्रेज लॉर्ड जी। हाँ जी, ज़करिया की किताब उसका 12 बाब
उसके 9 ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। एक मिनट हाँ और। जी सनिया पढ़ना। जिक्रिया की किताब उसका 12 बाब। हाँ जी इसकी 9 आयत। हाँ जी वर्ष कौन सी? 9 भाव जी वर्ष बता दें प्लीज। 9 ओके। प्रेज लॉर्ड। और मैं उस रोज यरूशलेम के सब मुखालिफ कौमों की हलाकत का कसीदा करूंगा। आगे भी भाव जी। हाँ जी आगे भी पढ़ लें। हेलो। हाँ जी पढ़ें आगे भी पढ़ लें। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिर करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तलख काम होंगे जैसे कोई अपने पलोठे के लिए होता है, और उस रोज यरूशलेम में बड़ा मातम होगा। भाभी जी आगे भी पढ़ूं? हाँ जी पढ़ो। ये दूसरा जो दौर है 3.5 साल का। हाँ जी के मातम। हाँ जी पढ़ो। जी मातम की नौबत जो मजदून की वादी में हुआ, और तमाम मुल्क मातम करेगा। हर एक घराना अलग, दाऊद का घराना अलग और इनकी बीवियां अलग, नातन का घराना अलग और इनकी बीवियां अलग, लावी का घराना अलग और इसकी बीवियां अलग, समय का घराना अलग और इसकी बीवियां अलग, बाकी सब घराने अलग अलग और इनकी बीवियां अलग अलग। हाँ जी बस ठीक है। यानी पहले जो 3.5 साल है उसमें हमने देखा कि पीछे हमने सीखा था कि वो भी उस वक्त दुआ में ठहरे होंगे, तो खुदा उनका एक जैसे कह लें उनको जोर या इत्मीनान या तसल्ली मिलेगी और वो गलबा पा सकेंगे। और इस दौर में भी ये दूसरा जो 3.5 साल का अरसा है, इसमें भी ये जो 10 आयत में लिखा है कि उन पे रूह नाजल होगी। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे, है ना। और इस दौर में यानी ये जो यहूदी हैं हमने जिनके बारे में सीखा कि वो 1/3 जो है जिन्होंने जिनको खुदावंद ने बचाना है, और लिखा उसके बारे में हमने इसी चैप्टर के इसी बुक के कि वो 1/3 को क्या करेगी, आग में डालकर चांदी की तरह साफ करेगा और सोने की तरह ताएगा। तो ये जो लोग होंगे जो 1/3 है, जिसका हमने देखा कि वो 1,44,000 हर कबीले में से खुदावंद ने उनको चुना था, उनके ऊपर मोहर लगी थी। उनके ऊपर जो एक मुनाजात की रूह जो है वो नाज़िल होगी, और उस वक्त वो दुआ में ठहरेंगे, या उस वक्त वो खुदावंद के जिस तरह इकलौते के लिए मातम किया जाता है, या वो उस तरह से वो दुआ में ठहरेंगे और खुदावंद उनको ताएगा या खुदावंद उनको बचाएगा, है ना। जिस तरह के पहले जो 3.5 साल का अरसा था, उसमें खुदावंद ने उन लोगों को क्या किया, उनके लिए दिन घटाए, उनके लिए एक जो खुदावंद का जो फजल था वो हुआ, क्योंकि वो दुआ में ठहरे थे। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो दूसरा हिस्सा है 3.5 साल का, इसमें भी मुसीबतें या प्याले जो है मेरा अगले चैप्टर में हम देखेंगे, लेकिन ये उस दौर में 3.5 साल का जो दूसरा हिस्सा होगा, उस दौर में इनके ऊपर खुदाम क्या है, मुनाजात की रूह जो है वो नाजिल करेगा, और ये रोएंगे और ये दुआएं करेंगे। और
उस वक्त खुदावंद जो है इनको क्या कहते हैं कि सोने की तरह क्या करेगा, ताएगा और चांदी की तरह साफ करेगा, आग में डालकर चांदी की तरह। और सोने का हमने सीखा कि या चांदी वो एक किस्म का, जब हम मुसीबतों में से, दुखों में से, तकलीफों में से, अजियतों में से गुजरते हैं, तो वो असल में खुदावंद हमारे ईमान को या हमें खुदावंद पाक साफ कर रहा होता है। तो इसलिए जब भी कोई मुसीबत आती है अब भी या बीमारी आती है, तो वो असल में हमें पाक साफ करने के लिए, निजात देने के लिए आती है। तो हम उससे भागे ना, हम उससे क्योंकि ये एक प्रोसेस है, या ये एक जैसे सोने को ताया जाता है तो उसको आग जिस किसी ने देखा है तो वो आग पे तपाया जाता है, आग के ऊपर उसको जैसे कहना सेका जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब ये मुसीबतें आती हैं, जब हम दुख में से, तकलीफ में से गुजरते हैं या बीमारी में से, दर्द में से गुजर रहे होते हैं, तो ये असल में एक जैसे कह लें कि इसके बगैर हम पाक साफ हो नहीं सकते। इसलिए इससे भागने की ना कोशिश करें, जल्दी से डॉक्टर के पास ना भाग जाएं, है ना। हम उसमें से गुजरे और देखें। जैसे शायद मैंने आपको बताया था कि जब बेटी जो बड़ी वाली है उसके दर्द हो रही थी और तकरीबन 14-15 घंटे वो मुसलसल दर्द में रही थी। और मैंने उसको कोशिश की, साथ ही उल्टियां भी हो रही थी, खून भी आ रहा था। तो मैंने उसको दर्द को कम करने के लिए आ, मतलब इतना दर्द हो रहा था, लोट-पोट हो रही थी जमीन के ऊपर, है ना। तो मैंने कहा कि ये जो इलायची है, छोटी इलायची जो होती है ना, क्या जो ग्रीन इलायची है, तो मैंने कहा ये थोड़ी सी ना, उसको मैंने पाउडर दिया, मैंने कहा ये खा ले, तेरी दर्द थोड़ी कम हो जाएगी और उल्टी भी ठीक हो जाएगी। तो उसने कहा कि नहीं, उसने ऐसे पीछे कर दिया। और फिर बाद में उसने मुझे बताया जब वो ठीक हो गई, कहती मैं ये नहीं लेना चाहती थी कि मैं उस दर्द को जैसे कह लो उसमें से गुजरना चाहती थी। जैसे खुदाम यीशु मसीह ने जब सलीब पे थे तो कहते थे कि सिरका इसलिए दिया जाता था जो सलीब पे मर रहे होते थे कि उनका दर्द जो है वो कम हो जाता था, जैसे सुन्न हो जाता है या कुछ इस तरह था, है ना। लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने नहीं लिया था सिरका, है ना। तो कहती है कि मेरे यीशु ने नहीं लिया था तो मैं क्यों लूं, मैं दर्द को क्यों कम करूं, वो मुझे शिफा दे तो दे, नहीं दे तो कोई बात नहीं है, मैं इसमें से गुजरूंगी। तो बिल्कुल हमारा रवैया जो हम मसीही हैं, हमारा खुदा यीशु मसीह के ऊपर इसी तरह होना चाहिए। दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उसको बर्दाश्त करें हम, और उस प्रोसेस में से हम गुजरें कि मेरे यीशु ने मेरे लिए, आपके लिए इसी तरह दर्द को बर्दाश्त किया था। अब सोचें कि जब खुदा यीशु मसीह के कोड़े मारे जा रहे थे और सलीब पे जब कील ठोके जा रहे थे, तो क्या खुदा यीशु मसीह को दर्द नहीं हो रहा था, है ना। दर्द हो रहा था, लेकिन उसने मेरे लिए और आपके लिए बर्दाश्त किया, है ना। ताकि क्या यही एक तरीका था, यही एक कह लें प्रोसेस था कि उसके बगैर वो शैतान से हमें या उसकी कैद से हमें छुड़ा नहीं सकता था, है ना। ये तकलीफ दा एक जो दर्द में से गुजरने का एक जो प्रोसेस था, उसके बगैर खुदा यीशु मसीह या खून बहाए बगैर वो हमें उसकी कैद से छुड़ा नहीं सकता था, क्योंकि ये सारी मौत जो थी वो मुझे और आपको मरनी थी, जो खुदाम यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली थी, है ना। इस दर्द में से, इस तकलीफ में से, क्योंकि जो जो हमने गुनाह किए हुए थे उसकी सजाएं क्या थी, उनको सलीब पे चढ़ाया जाता था, उनके बाजू काट दिए जाते थे। फर्ज करें जो चोरी करता था या ना, तो उनको मार दिया जाता था। तो ये सारी मौत जो है वो खुदाम यीशु मसीह ने अपने बदन के ऊपर ली और बर्दाश्त किया। तो बिल्कुल इसी तरह जब ये बीमारी आती है, जब कोई तकलीफ आती है, तो असल में वो हमें जो हमने उस कह लें कुछ किया होता है, खुदा हो सकता है खुदा उनकी नाफरमानी की हो, या हो सकता है हमारे कुछ भी ऐसा हो सकता है हमने किया हो,
जिसकी वजह से ये तकलीफ या जिसकी वजह से दरवाजा जो था हमने खुद खोल दिया शैतान के लिए कि वो हमें अजियत दे, हमें वो उस दुख में, उस बीमारी में लेके आया है ना, तो हमें उसमें से गुजरना चाहिए, उसमें माफी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए कि खुदावंद मुझे माफ कर। जिस तरह ये इस दौर में वो माफी मांगे, वो तौबा करेंगे, वो दुआएं करेंगे, इसराइली भी और जो थे मसीह के जो अक्लमंद कवारियां थी, है ना, तो या होंगी तो उस दौर में दुआ में और मुनाजातों में ठहरेंगे और खुदावंद जो है उनको बचाएगा, वहां से बचाएगा इसी तरह कि उनको जान देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जिस्मानी काम जो थे किए। इसीलिए हम अब जो है मसीही या अब जो दुल्हन तैयार हो रही है, उसको जिस्मानी काम नहीं करने, रूहानी काम हमें करने हैं, जो भी कुछ, क्योंकि जिस्म के तौर पे तो अब हम मर गए हुए हैं। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो जिस्मानी तौर पे हम मर जाते हैं, हम मसीह को हमने पहन लिया है ना। इसलिए रोमियो के उसमें बुक में लिखा है कि अब हम रूहानी हैं, इसलिए रूहानी चीजों की तलाश में रहे। लेकिन जब भी हम कोई जिस्मानी काम करते हैं तो फिर हमारे ऊपर ये मुसीबतें आती हैं, फिर ये तकलीफें, ये बीमारियां हमारे ऊपर उनको जैसे कह लें राइट मिल जाता है, लीगर, कि वो हमारी जिंदगियों में आए, हमें दुख दें, हमें तकलीफ दें। तो अगर हम उस पीरियड में जो भी मुश्किल आ गई है, कोई भी है, हमारे बच्चे फर्ज करें नाफरमानी हो गए हैं, या नशे में पड़ गए हैं, या बीमारी हमारे ऊपर आ गई है, या हमारे बच्चों के ऊपर, तो उस वक्त वो टाइम होता है, वो एक कह लें सफाई का और सोने की तरह ताए जाने का एक वक्त होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, छेती नाए दे विचों निकल जाइए कुछ भी उसके लिए पीरों फकीरों के पास भागना पड़े, डॉक्टरों के पास भागना है। और जैसे हमने पिछले दिनों साफ साफ ही मैंने आपसे, जैसे कह लें मैंने नहीं, मतलब खुदावंद ने आपसे बात की कि जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो असल में हम समझें कि विचों वो जादूगरों के पास जाते हैं, साफ साफ। तो इसलिए हम भागते हैं कि वो जल्दी से इस मुसीबत में से निकल जाए, ओदे लिए मैंने कुछ भी करना पाए। हम उनके कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, और क्या कहते हैं कि बचा लो हमें। वो खुदा है, वो हमें बचा सकते हैं। हम जिंदा खुदा के पास जाएं, उससे मांगे, जो हमें इस तकलीफ में से, इस मुश्किल में से, इस बीमारी में से हमें निकाल सकता है, हमें आजाद कर सकता है, बहाल कर सकता है, इस दर्द में से, इस तकलीफ में से वो निकाल सकता है ना। और कलाम में ये लिखा भी हुआ साफ साफ कि बीमारी जो है वो हमें असल में वो निजात देने के लिए आती है, मुक्ति देने के लिए आती है। तो इसलिए जो भी मुश्किल है, जिस भी सिचुएशन में से आप गुजर रहे हैं, वो असल में हमें क्या करने के लिए आ रही है, हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए आई है। खुदावंद पे हमारा ईमान जो है वो बढ़े, हम दुआ करें, हम रोजे में ठहर जाएं, हम ये जैसे इधर लिखा कि क्या है, वो मुनाजात की रूह उन पे नाज़िल हुई, ताकि वो क्या करें, खुदावंद के पास जाएं, खुदावंद से के कदमों में जाके बैठ जाएं। तो अब हम जो दुल्हन तैयार हो रही है वो भी क्या करे, वो खुदावंद के पास भागे, खुदावंद के पास जाए, यीशु के पास जाए, उसके कदमों में बैठ जाए। वो मरियम की तरह, जैसे वो क्या उसने आंसुओं से खुदावंद यीशु मसीह के कदमों को धोया, बालों से उसको पहुंचा, है ना। तो हम भी इतने हम गंदे हैं, इतने हम कह लें गलत काम करते हैं, कभी ये सोचें कि एक एक जो गलती या हम करते हैं, गुनाह करते हैं, अगर उसकी सजाएं हमने पीछे देखी थी जब हमने 10 हुक्म सीखे थे, अगर हम उनकी सजाएं देखें तो मेरा ख्याल है हमें तो कभी उसके कदमों में से उठना ही नहीं चाहिए। खुदा हम यीशु मसीह के कदमों में बैठे रहें, जो हमने वो जगह तैयार की है, वो कुर्बान गाह, है ना। हम वहां पे जैसे रविंदर ने कहा कि मैं आधे घंटे के लिए जाती हूँ, 10 मिनट के लिए जाती हूँ, और घंटों घंटे वहां पे बैठी रहे। हम भी जहाँ वहां पे जाएं, खुदा उनके कदमों में बैठे रहें, जिस तरह वो मरियम जो थी वो खुदा उनके कदमों में बैठ गई, और उसकी इतनी भी एक मैं कहूंगी कि हिम्मत नहीं थी कि वो अपने सर को ऊपर उठा के खुदा की तरफ देखती, अपनी आंखें उठाती, है ना।
इतनी हलीमी उसके अंदर आ गई, क्योंकि उसको पता था कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ। पर हम क्या करते हैं, हम समझते हैं वो मैं तो बड़ियां दुआवां करने, मैं तो रोजे रखना, मैं तो बड़ा मतलब पाक साफ हूँ। हम समझते हैं नहीं, हम कभी भी उस जैसे कह लें म्यार तक उस तरह से पाक साफ नहीं है ना। तो इसलिए हमें हमेशा हमारे अंदर, इसीलिए वो हमने ये पिछले दिनों जो कुर्बान गाह के बारे में सीखा कि वो हमारे अंदर एक हलीमी को लेके आती है, हम्बलनेस को लेके आती है, फरोतनी को लेके आती है कि हम कदमों में बैठे, हमारी जगह ही खुदा यीशु मसीह के कदमों में। वो तो उसकी मेहरबानी है, उसका रहम है, उसका तरस है कि वो हमें उठाता है और अपने सीने से लगा लेता है। लेकिन हमारा रवैया, हमारा बिहेवियर खुदा यीशु मसीह के साथ इस तरह का होना चाहिए कि उसने हमारी खातिर जान दी है, कीमत दे के। कीमत का मतलब जिस तरह पैसे दे के गुलामां नु लै आईदा ना, नौकरों को ले आते हैं, अभी भी खरीदे जाते हैं। और पुराने अहदनामे में भी हम देखते हैं कि जिस तरह यूसुफ को फोतीफोर जो था वो पैसे दे के खरीद के लेके आया था, वो नौकर था उसका। लेकिन उसने भी क्या किया, उसने घर का सारा, उसको एक किस्म का हाकम जो था या मालिक जो था उसने बना दिया कि सब कुछ उसके इख्तियार में दे दिया था, है ना। बिल्कुल इसी तरह हमारे खुदा यीशु मसीह ने किया कि हम असल में उसके नौकर हैं, उसने कीमत दे के खरीदा है। लेकिन ये उसकी मेहरबानी है, ये उसका बिहेवियर है कि उसने हमें उठाया और अपने सीने से लगा लिया, उसने हमें अपनी दुल्हन बना लिया, है ना। तो ये तो उसकी मेहरबानी है। लेकिन हमारा रवैया हमेशा जब तक हम हमें ले नहीं जाता, अपने साथ तख्त पे बिठा नहीं लेता, तब तक हमारा आखिरी सांस तक ये वाला रवैया जो है, हलीमी जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। हम अपने आप को शहजादे और शहजादियां यहाँ पे जमीन पे ही ना समझना शुरू हो जाए। नहीं, हम शहजादे और शहजादियां कब होंगी, जब 1000 साल बादशाही शुरू होगी, तब हमें हराज जो है वो हमारे 20 चैप्टर में आगे चल के हम देखेंगे कि तब हमें सौंपा जाएगा। यहाँ पे जमीन पे हमें खुदा ने ये इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छों को कुछ लो, है ना। ये वाला इख्तियार नहीं दिया कि हम दूसरों को जज करना शुरू हो जाए, दूसरों में से गलतियां निकालना शुरू हो जाए, दूसरों को हकीर जानना शुरू हो जाए। नहीं, जिस तरह के किसी में कोई गलत है, फर्ज करे किसी में झूठ बोलने की एक आदत है, तो हो सकता है हमारे अंदर गुस्से की आदत हो, हमारे अंदर बदगोइयों की एक हो, तो हम बराबर हैं दोनों। हम दूसरों को हकीर ना जाने, है ना। हम एक दूसरे से कोई भी बढ़कर नहीं है। हो सकता है दूसरा बंदा किसी दूसरे एरिया में फर्ज करे मोहब्बत में मेरे से ज्यादा खुदा उनको प्यार करता हो, उसका ईमान का लेवल बड़ा हाई हो मेरे से, है ना। अम, तो इसलिए किसी को भी हकीर ना हम जाने, किसी को भी ये ना समझे कि जी ओ मैं तो खुदा हो रहे बड़ा टाइम देनी है ते मैं तो बड़ी वो पाक हूँ, तो दूसरे बंदे को हम हकीर जाना, ये नहीं। ये खुदा यीशु मसीह ने हमें ये नहीं सिखाया। उसने कहा कि पहले अपने आंख का हम चतीर निकालें, तो फिर दूसरी की आंख के तिनका जो है वो आराम से निकाल सकेगी, है ना। तो इसलिए हमारे अंदर वो हलीमी, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो ईमान, वो पाकीज़गी जो है, हमारी जो दौड़ है वो होनी चाहिए। हम दूसरों को ना जज करते रहें, ये हम करेंगे। अगर हम दुल्हन की माने तैयार होंगे, तो 1000 साल बादशाही में जज के कह लें तख्त पे हमें खुदावंद वो बिठाएगा, है ना। लेकिन अभी ये नहीं है हमारा जो एक काम जो है, ये नहीं है। अभी हमारे अंदर ये हलीमी जो है ये होनी चाहिए, क्योंकि देखें इनमें तब आई ये जो यहूदी जो थे, जो 1,44,000 यानी जो एक तिहाई बचाए जाएंगे, उनके अंदर तब वो एक जैसे मैं कहूंगी कि हलीमी आई, या वो अक्लमंद कंवारियां जो हैं, तब वो दुआ में और उसमें शुक्रगुजारी में उन्होंने वक्त गुजारा। तब उनको वो दुआ की एक अहमियत, या वो खुदा उनके साथ जो टाइम हमें गुजारना चाहिए, वो एक जो एक रिश्ता उन्होंने मजबूत किया, तब उन्होंने वो कपड़े धोए, तब उन्होंने जिस्मानी काम जो थे वो छोड़े, तो इस तरह वो बचाए गए। तो अगर हम अब ही ये करें
کہ ہمارے اندر یہ حلیمی ہو یا پاکیزگی ہو، محبت ہو، ہم جسمانی کام نہ کریں. ہم خداوند نے جو ہمیں خداوند کا کلام ہمیں جو بتاتا ہے، سکھاتا ہے، جو شاگردوں کے ذریعے جو سچے مسیحی کے بارے میں یعنی خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے. اگر ہم اس مسیح کو مانتے ہیں یا اس طرح بننا چاہتے ہیں تو یہ سارے جو حکم ہے جو خدا یسوع مسیح کے ذریعے کے شاگردوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، ان سب پہ عمل کرنا ہمیں ضروری ہے تاکہ ہم مسیح کی مانند بن جائیں. جیسے وہ برے کے پیچھے پیچھے کیا کرتے تھے، چلے تھے، چلتے ہیں جو، تو تب وہ اس تک پہنچیں گے، ہے نا. تو بس ایک حوالہ ہم اور پڑھتے ہیں کہ یہ جو دور ہے یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ بادلوں پہ آئیں گے. زکریا کی کتاب سنیا اور انجنا پڑھنا 14 باب اور اس کی 16 آیت. زکریا کی کتاب اس کا 14 باب اس کی 16 آیت آپ پڑھنا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت جو لوگ جو ہیں جو 1/3 جو ہیں وہ بچائے جائیں گے. Praise the Lord. 14 باب بھابی جی آیت 16 آیت. اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہے گے سال با سال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید قیام منانے کو آئیں گے. اور دنیا ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں گے مینا نہ برسے گا. اور قبائل مصر جن پر بارش نہیں ہوتی نہ آئیں تو ان پر وہی عذاب نازل ہوگا جس کو خداوند ان غیر قوموں پر نازل کرے گا جو عید قیام منانے کو نہ آئے گی. آگے بھی پڑھوں بھابھی؟ نہیں بس ٹھیک ہے، تھینک یو. ہاں جی، تو میرا حال اس پہ ہم تھوڑی لمبی بات ہوگی. ہاں جی، ورس نہیں پڑھ انجنا رہنے دو، میرا ٹھیک ہے. خیال ہے کہ یہ تھوڑے نا بات لمبی ہو جائے گی تو اس پہ ہم کل بات کریں گے. تو لیکن یہ جو 1/3 ہیں جو اسرائیلی وہ اس دور میں بچائے جائیں گے جب خدا یسوع مسیح یعنی یہ ہر مزدون کی جنگ کیا کہتے ہیں ہوگی. تو یعنی 3.5 سال کا جو عرصہ ہوگا اس میں یہ یہودی جو ہیں 1/3 جو یہودی ہیں وہ اس دور میں سے بچیں گے، اور پہلے 3.5 سال کے دور میں جو مسیحی ہیں جو عقل مند کنواریاں ہوں گی وہ بچیں گی، ہے نا. لیکن یہ ہم نے سیکھا کہ وہ کریں گی اس دور میں کیا کہ وہ اس دور میں سونے کی طرح ایک قسم کا پائے جائیں گی، چاندی کی طرح خداوند ان کو پاک صاف جو ہے وہ کرے گا، ہے نا. اور پھر ایک قسم کا کہہ لیں کہ وہ بچائے جائیں گے. تو اسی لیے یہ اگر ہم اب اس دور میں کر رہے ہیں، اس فضل کے دور میں ہم یہ کام جو ہے اگر کریں تو ہم اس دور سے بچ جائیں گے، تاکہ خداوند جو ہے جو اب ہمیں تیار کر رہے ہیں تو ہم اپنے بدنوں کو، جس طرح کے رومیوں کے خط میں لکھا ہے نا کہ اپنے بدنوں کو اس قربانی ہونے کے لیے، سوکھتی قربانی ہونے کے لیے پیش کریں، ہے نا. اپنے بدنوں کو ہم اپنا نہ سمجھیں کہ وہ میرا بدن میری مرضی، ہے نا. ہماری مرضی نہیں ہے، یہ بدن خداوند کے خداوند یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے ہیں، اس لیے یہ خداوند یسوع مسیح کے ہیں اور اس کی ہی مرضی ہمارے بدنوں کے اوپر پوری ہو. اس لیے ہم اپنے بدنوں کو خدا یسوع مسیح کے ہاتھوں میں دیں. اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اب جو ہمیں تیار کرا یا ہماری مدد کرا ہے خدا پاک روح، تو خدا پاک روح کو 7 روحیں جو ہیں وہ تیار کر رہی ہیں، تو ان 7 روحوں کے حوالے ہم کریں کہ وہ ہمیں یسوع کی مانند بنائیں، ہے نا. تاکہ ہم جب خدا یسوع مسیح بادلوں پہ آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے ہیں. تو گاڈ بلیس یو. مجھے اور آپ کو خدا یہ فضل دے، ہم پہ رحم کرے، ترس کھائے کہ ہم پاک دامن کمواری کی مانند تیار ہیں. گاڈ بلیس یو. بیک ٹو سونیا.
ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। Praise you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਰਗ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਆਰੇ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਈਵਨ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਕੁਮਾਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਨ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੌੜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਮੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚੱਲਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਅੱਗ ਤੇਰਾ ਮੱਸਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਦਦ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਈਸ਼ਵਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਆਮਣ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਉਣ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾ ਕਥਸਿਰਾ ਕਥਸਿਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, 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 ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ के नाम से। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु जितने ने तेरी आज्ञा नाल भर जान परमेश्वर। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यीशु के नाम से। ओ प्रभु जो बुराइयां प्रभु लो जो यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। यस लॉर्ड, यस ओ प्रभु तेरी तारीफ, 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 हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। ओ रे बेबी सनमो कातिरियाना सतिरानी ना सनमोनी कातिरियाना मातिरे
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ Yes, ਕਹਿੰਦਾ Lord, yes. ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸੀਯੋਨ ਤੇ ਜਰੂਸਲਮ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ ਜਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। Yes, Lord, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। yes. Hallelujah, Ore hallelujah. mere karatire, katire Yes, Lord. mania satirania na mana katire. Oh, liba. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Rimana shatirenia katirana seratirania. Oh, rimana katire. Oh, ribala katire. Oh, ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ Yes, ਉਹਨੂੰ Lord, yes. ਤਗੜਾ ਕਰੇਗਾ। Yes, ਉਹ Lord. ਰਿਬਰਾ ਸ਼ਤਿਰਨੀ ਮਾਸਨਾ ਕਾਤਰੇ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਤਗੜਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਰਿਮਾਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾ ਕਾਤਰਾ Yes, ਸਰਮਨਾ Lord, yes, ਕਾਤਰਾ Lord, yes, ਸਿਨਾ Lord. ਮਾਸਨਾ ਮਾਤਰਾਨੀਆ। Oh, limanas, limanasire, katire, Yes, nimani, Lord, yes, namanasatire, Lord. nimashatirana, katirania. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ Yes, Lord. ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤਾਰੀਫ, 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 ਤਾਰੀਫ। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, 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 Yes, ਤਾਰੀਫ। Lord, ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ those who led by the spirit of God, they are the sons of God. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ Yes, ਤੋਂ ਦੁਆ Lord. ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, Yes, ਧੰਨਵਾਦ, Lord, ਧੰਨਵਾਦ, yes, Lord, yes, ਧੰਨਵਾਦ, Lord. ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, Yes, ਧੰਨਵਾਦ Lord, ਪ੍ਰਭੂ। yes, Lord, ਅੱਜ ਦੇ yes, Lord. ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, 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 Yes, ਧੰਨਵਾਦ, Lord, yes, ਧੰਨਵਾਦ, Lord, yes. ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਗੜਿਆ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, Yes, ਧੰਨਵਾਦ, Lord, yes, ਧੰਨਵਾਦ Lord, ਪ੍ਰਭੂ। yes, Lord, ਉਹ yes, ਪ੍ਰਭੂ Lord. ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ Yes, Lord. ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। Yes, ਉਹ Lord, yes. ਕੰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਖੁਦਾ Yes, ਤੇਰਾ Lord ਧੰਨਵਾਦ Jesus. ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ Yes, ਪ੍ਰਭੂ Lord, ਅਸੀਂ yes, ਸਾਥ Lord, ਨੂੰ, ਭੈਣ yes. ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ Yes, ਕਰਦੇ Lord, ਪ੍ਰਭੂ yes, ਜੀ। Lord, yes, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ Lord. ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ Yes, ਸਾਰਾ Lord. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। Amen. Praise the Lord. Yes. आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जब आमीन। प्रिंस प्रेयर कर रहा था तो मैंने बड़े ही जोर से एक येलो सा लिक्विड जो था हमारे ऊपर उंडेला गया है और दुआ का मसा जो है, और फिर उसके बाद मैंने देखा कि खुदा का फरिश्ता ऐसे जैसे हमारे ऊपर आया है और उसने हमारे ऐसे, मैंने देखा कि हम एक जैसे कल सर्कल में बैठे हुए हैं और उसने हमारे सरों के ऊपर एक वाइट सा लिक्विड जो है वो उंडेला है। और खुदा ने कहा है कि ये जो मुनाजातें और दुआओं का जो रूह थी उनके ऊपर उंडेली थी, खुदा ने हमारे पर भी वो जो रूह है वो उंडेली है, वो डाली है हमारे अंदर, और हम भी उसी तरह से दुआ और रोजे में और शुक्रगुजारी में और मुनाजातों में खुदावंद ने कहा है कि वो हमें इस्तेमाल करेगा और हम उसी तरह से
तैयार होंगे, जिस तरह खुदावन ने उन लोगों के ऊपर अपने रूह जो थी वो डाली थी। तो इसलिए खुदावन का हम शुक्र करते हैं कि खुदावन जो है हमें तैयार करने के लिए ये दुआ और रोजे में ठहरना या मुनाजाते करना, खुदावन की हजूरी में ठहरना, ये बहुत जरूरी है। तो खुदावन ने वो मसा जो है हमारे ऊपर उंडेला, तो खुदावन का हम शुक्र करते हैं। और खुदावन ने ये भी साथ कहा है कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं जो खुदावन ने कहा कि मैं कभी भी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें अपने परों में छुपा के रखूंगा, मैं बचा के रखूंगा। तो इसलिए खुदावन का हम शुक्र करते हैं, खुदावन की तारीफ करो। अगर आपने भी, किसी ने भी कुछ देखा है या खुदावन ने आपको टच किया है दुआ में, तो आप शेयर कर सकते हैं। जी, हालेलुया, प्रेज गॉड। चलें, ठीक है। खुदावंद आपको बरकत दे। Praise जी सनिया, कुछ कहना है आपने? प्रेज लॉर्ड। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ। आज खुदा मैं बहुत दिनों के बाद, मतलब मेरे कभी नेट का इशू, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही थी कि मोबाइल, मतलब मैं उस प्रॉपरली इस मीटिंग में मैं नहीं आ पा रही थी। और आज ही खुदावन के आगे, हजूर खुदावन के आगे झुकी और खुदावन के आगे मिन्नत की कि खुदावन, वो नेट की प्रॉब्लम में लास्ट प्रेयर भी नहीं सुन पाती। तो ऐसा हुआ कि खुदावन, मतलब आज ही जब ये भाई प्रेयर करे तो मैंने खुदावन की हजूरी को बड़े गहरे तौर से फील किया। मैं इसके लिए खुदा का शुक्र करती हूँ। प्रेज लॉर्ड, प्रेज ऑल गॉड, ग्लोरी टू जीसस। खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल, क्योंकि वो हमारी दिली मुरादों को पूरा करता है। प्रेज, हालेलुया। प्रेज प्रेज गॉड। बिल्कुल, खुदावंद ने हमें सबको टच किया है। मेरा ईमान है कि दुआ में खुदावंद ने आप सबको टच किया है, क्योंकि खुदावंद ने हम सबके ऊपर वो दुआ का रूह जो है वो उंडेला है, वो मसा जो है हम सबको दिया है। तो इसलिए खुदावंद ने हम सब कुछ टच किया है। आपने फील किया है या नहीं किया, लेकिन खुदावंद ने हमें टच किया है, तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। ओके जी, प्रेज गॉड। गुड नाइट जी सारों को।